آئندہ میں تمہارے ساتھ کہیں آنے جانے والی نہیں۔ خواہ میں لوگ بھیڑ لگا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ اطمینان سے بولی کہ اب تو مسئلہ حل ہو چکا تھا، تم ادھر ہی سے بھاگو۔ امی کو پتہ چلا کہ میں تمہارے ساتھ آئی ہوں تو وہ وین والے کو ڈانٹیں گی کہ وہ مجھے لینے کیوں نہیں پہنچا۔ ثانیہ نے اسے گیٹ سے ہی بھگانا چاہا۔ وہ ایک پاؤں زمین پر ٹکائے مسکراتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آرام سے بولو، ویسے تمہاری فرینڈز میرا شکریہ ادا کر رہی تھی کہ ان کی فرمائش پر میں کالج چلا آیا اور سب نے اتنی آسانی سے میرا آٹوگراف لے لیا۔ یوں پول کھولنے پر وہ کھسیا سی گئی۔ یوں ہی فضول میں کہہ رہی ہوں گی، ہو کیا چیز تم؟ میں تو نہیں، تم بہت بڑی چیز ہو۔ وہ دلکشی سے مسکراتا پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوا۔ ثانیہ اسے گھور کر پلٹی اور ڈور بیل پر ہاتھ رکھ دیا۔ تم نے میرا آٹوگراف نہیں لیا؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ ثانیہ نے صرف چہرہ موڑ کر اسے دیکھا اور بے نیازی سے بولی، مجھے کچے کاغذ پر تمہارے دستخط لے کر کیا کرنا ہے؟ ہاں، ڈونٹ وری اباؤٹ دیٹ۔ وہ بے ساختہ ہلکے سے کہنے کے ساتھ ہنسا تھا، پھر بڑی معنی خیز انداز میں بولا، تمہارے لیے تو میں بہت پکے کاغذ بنواؤں گا اور اس پر نہ صرف میری بلکہ تمہاری بھی 3 عدد آٹوگراف ہوگی۔ قدرے توقف کے بعد وہ ثانیہ کو سمجھ آئی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ جب تک وہ مٹھیاں بھینچ کر پلٹتی، وہ بائک اڑا لے گیا۔ ربش، ڈیم فاؤل۔ وہ تلملا کر رہ گئی۔ رمضان کے بابرکت مہینہ شروع ہوا تو جیسے زندگی میں یکدم ہی بہت ٹھہراؤ سا آ گیا۔ بھاگتی دوڑتی زندگی ایک دم پرسکون سی لگنے لگی۔ ہواؤں میں شدت پیدا ہو گئی، جیسے کوئی آدمی گھر سے نکلے مسلسل سفر میں رہے اور پھر ایک دن اس کا گھر تمام تر نرمی و گرمی سمیٹے اپنی پرسکون باہوں میں لینے کو تیار ہو۔ ایسے ہی مسئلہ رمضان کے مہینے کا بھی ہے۔ سال کے باقی تمام مہینے بھاگم دوڑ میں گزارنے اور مادی اشیاء حاصل کرنے کے تک و دو کرنے کے بعد جب یہ مہینہ آتا ہے تو جیسے انسان کا یک اپنے حقیقی قالب میں ڈھلنے لگتا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے وہ دنیا کی ہر برائی، ہر گندگی سے پاک ہو گیا ہو۔ مادی اشیاء سے ہٹ کر دل روحانیت کی طرف ہمکنے لگتا ہے۔ ویسا ہی سکون ملتا ہے جیسے اپنے اصلی گھر کو سامنے پا کر دل میں اترتا ہے۔ وہ بھی پوری دیانت داری سے حقوق اہلیہ اور ادا کرنے کی کوشش میں تھی۔ آج تیسرا روزہ تھا۔ وہ افطار اور نماز کے بعد چائے بنانے کے لیے کچن میں آ گئی۔ آج صبح کویت سے ابو کا فون بھی آیا تھا کہ وہ چاند رات تک ضرور پاکستان پہنچ جائیں گے۔ اس کے لیے وہ بہت خوش تھی۔ اسی بارے میں وہ سوچتی وہ ٹرے میں اپنی امی اور علی کے لیے چائے کے مگ رکھے لاؤنج میں پہنچی تو وہاں میکائل کو پا کر اسے خوشگواری سی حیرت ہوئی۔ آج کافی دنوں کے بعد وہ دکھائی دیا تھا۔ ثانیہ کی خوشگوار انداز میں کیے جانے والے سلام کا اس نے بہت سنجیدگی سے جواب دیا۔ یہ تم رمضان کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے کیسے کھول دیے گئے ہو؟ اس نے شرارت سے پوچھا تو وہ اچھٹتی نگاہ اس پر ڈالنے کے بعد دوبارہ علی کی طرف متوجہ ہو گیا، جو اس سے اپنے دوستوں کے لیے آٹوگراف لینا چاہتا تھا۔ جبکہ ثانیہ کی بات پر امی نے گھور کر دیکھا تو وہ گہری سانس لے کر رہ گئی۔ ایک الجھن سی بھی ہوئی تھی کہ وہ جواب دیے بغیر رہنے والا تو ہرگز نہیں تھا۔ وہ اپنا چائے کا کپ میکائل کے سامنے رکھتی برتن دھونے کے خیال سے کچن میں چلی آئی۔ یہ سب کچھ سمیٹ کر وہ سنک کو کپڑے سے خشک کر رہی تھی جب وہ کچن میں آ گیا۔ ثانیہ نے مسکرا کر اسے دیکھا مگر وہ دروازے کے فریم سے ٹیک لگائے سینے پر بازو لپیٹے بہت سنجیدہ سا تھا۔ کیا بات ہے میکائل، تم تو واقعی سپر سٹار بن گئے ہو، بغیر چیک لیے مسکرا بھی نہیں رہے، اس نے طنزیہ لہجے میں کہا تو وہ قدرے توقف کے بعد سنجیدگی سے بولا، تمہیں باز بھائی کیسے لگتے ہیں؟ ثانیہ کو جھٹکا سا لگا تھا۔ بھلا اس وقت اس سوال کی کیا تک تھی؟ غیور سے اسے دیکھا تو وہ دوبارہ بولا، کیا خیال ہے تمہارا ان کے متعلق؟ اچھا خیال ہے، مگر تم کیوں پوچھ رہے ہو؟
वो उलझ गई थी। इतना अच्छा ख्याल है कि तुम उनका प्रपोज़ल भी कबूल कर लोगी। उसने जैसे धमाका ही कर दिया। सानिया को अपनी पेशानी तपती महसूस होने लगी थी। अगर ये मजाक था तो बहुत घटिया मजाक था। ये बकवास है। उसे गुस्सा आने लगा। मैं भी तुम्हें यही कहने आया हूँ कि ये बिल्कुल बकवास है। तुम अगर कोई प्रपोज़ल कबूल करोगी तो सिर्फ मेरा। वो बहुत मजबूत लहजे में कहता सानिया के हवास उड़ा गया था। ये क्या कह रहा था वो? उन राहों पर वो कब चल निकला था? कब? कैसे पता? कि कैसे? पता नहीं। दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया तुम्हारा? उसके जहन में सनसनाहट सी होने लगी। खुश्क होते हलक के साथ उसने डांटना चाहा, मगर वो उसी लबो लहजे में बोला, घर में तुम्हारे और मास भाई के रिश्ते की बात हो रही है, मगर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, और ना ही तुम। पहली बार ज़िंदगी में उसे हकीकतन मिकाइल पर सख्त गुस्सा आया। शट अप मिकाइल, तुम यहाँ से फ़ौरन चले जाओ। खुद पर कंट्रोल करते हुए भी उसका लहजा तेज़ और तुरुश हो गया था। लम्हा भर उसे देखते रहने के बाद वो चला गया तो सानिया की हिम्मत भी जैसे वापस जवाब दे गई थी। तपे चेहरे को उसने सर्द हाथों से ढाँप लिया और वहीं स्टूल पर बैठ गई। ये क्या इंकशाफ कर गया था वो, या फिर कोई नया मजाक? मगर यह हकीकत थी कि वो साकित रह गई। अगर उसका और मास के रिश्ते की बात हो भी रही थी तो इस पर मिकाइल का रद्द-ए-अमल बहुत नाकाबिले यकीन था। उस रोज़ के बाद वो जैसे उधर का रास्ता ही भूल गया था। बहरहाल इतना तो उसे अंदाज़ा ही था कि वो रमज़ान के एहतराम में अपनी म्यूज़िकल एक्टिविटी को छोड़े हुए है। उन दिनों सिर्फ यूनिवर्सिटी ही जा रहा था, मगर उसने शुक्र भी कर लिया था कि दोबारा उसका सामना नहीं हुआ, क्योंकि सानिया का गुस्सा भी उतरा नहीं था। मगर 11वें रोज़े वाले दिन वो फिर उसके घर में मौजूद था। अम्मी ने उसे बुलाया तो वो उसकी तरफ तवज्जो दिए बगैर उनसे काम पूछने लगा। मिकाइल के किसी दोस्त ने इफ्तार पार्टी रखी है, ये कह रहा है कि तुम्हें भी उसके साथ भेजूँ। अम्मी ने कहा तो वो नागवारी से बोली, मेरा वहाँ क्या काम? दरअसल उसकी अम्मी और बहनें वगैरह भी तो होंगी। मैं तो अभी से नर्वस हो रहा हूँ। तुम चलोगी तो कंपनी रहेगी। कहे ना उसे चच्ची जान। वो बहुत दोस्ताना अंदाज में कह रहा था, जैसे कोई नागवारी हुई ही ना हो उनके माँ बहन। मेरे दूसरे फ्रेंड्स भी अपनी सिस्टर्स वगैरह को ले जा रहे हैं। मैंने सोचा मैं अपनी कज़न को ले जाऊँ, वो कह रहा था। सानिया ने उसकी तरफ देखे बगैर रुखाई से कहा, तो बड़ी अम्मी को ले जाओ, फिर अम्मी ही को ले जाओ ना अपने साथ। तुम ना जाना चाहती हो तो अलग बात है, बहाने मत बनाओ। वो एकदम खफकी से कहता उठ खड़ा हुआ। सानिया पर तो कोई असर नहीं हुआ, मगर अम्मी ज़रूर बौखला गई। कमाल करती हो तुम भी मिकाइल, भला इसे साथ जाने में क्या मसला है? वो तो यूँ भी मिकाइल के काफ़ी नखरे उठाया करती थी। तहकुमाना अंदाज में सानिया से कहा, जब ये कह रहा है तो फिर ख्वामखा की बहस क्यों कर रही हो? चली जाओ ना इसके साथ। कौन सा किसी शादी ब्याह में जाना है, इफ्तार पार्टी ही तो है। अम्मी के इस अंदाज के सामने वो हमेशा की तरह किसमिसा भी नहीं पाई थी। अलबत्ता पाँव पटक कर वहाँ से जाती हुई मिकाइल की मखसूस मुस्कुराहट ने दिल ज़रूर जलाया था। क्या मास भाई, और कहाँ ये लापरवाह, जज्बाती और गैर संजीदा शख्स। पिछले कई दिनों से वो यही मुआवजा कर रही थी, और उसने पक्का इरादा कर लिया था कि अगर मास का प्रपोज़ल आया तो वो इनकार नहीं करेगी। और वो इफ्तार से आधा घंटा पहले गाड़ी लिए चला आया था। वो तैयार थी, खामोशी से गाड़ी में आ बैठी। अम्मी से जल्दी वापसी की तलकीन कर रही थी और वो बड़ी फर्माबरदारी से सर हिला रहा था। तुम तो कोई सुपरस्टार नहीं हो, फिर किस बात का गुरूर दिखा रही हो? उसकी खामोशी तोड़ने के लिए वो मुस्कुराहट दबाए कह रहा था, मगर वो माथे पर तेवरिया डाले हनूज स्क्रीन के पार नज़र जमाए हुए थी। देखो, रमज़ान में यूँ बायकॉट करना बहुत सख्त गुनाह है। वो इसे डरा रहा था। उससे भी बड़ा गुनाह कोई है? वो चीख कर जताने वाले अंदाज में बोली तो वो हंस दिया। ओके, मगर अब तो सुलह कर लो। मुझे वाकई तुमसे वो सब कुछ नहीं कहना चाहिए था। आई एम सॉरी फॉर दैट। वो संजीदगी से बोला तो सानिया ने
तंबिया करने वाले अंदाज में इजाफा किया। तुम्हें ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए था। वो खामोशी से गाड़ी ड्राइव करता रहा। सानिया भी कुछ नहीं बोली थी, मगर फिर एक रेस्टोरेंट के सामने गाड़ी रोके देखकर वो रह नहीं सकी। यहाँ क्या है? क्या रेस्टोरेंट में इफ्तार पार्टी करना है? क्या रेस्टोरेंट में इफ्तार पार्टी करना गुनाह है? लापरवाही से पूछ रहा था। वो लब बीच का दरवाज़ा खोलती हुई नीचे उतर गई। अब प्लीज़ अपना मूड ठीक कर रखना। इन लोगों से मैं तुम्हारा इंट्रोडक्शन करवा चुका हूँ, अच्छी तरह से बातचीत करना। वो अंदर दाखिल होने तक उससे ब्रीफ करता रहा। वो जिस टेबल की तरफ बढ़ा था वहाँ सिर्फ 3 लड़के और एक लड़की विराजमान थी। तीनों लड़के एहतरामन खड़े हुए थे। ये आसिम है, बहुत अच्छा कीबोर्ड बजाता है। ये ज़का है, गिटारिस्ट है। ये अबीद है, पोइट्री भी लिखता है और मेरे साथ मिलकर कंपोजिशन भी बनाता है। और ये ज़ुनैरा है, ज़का की फियांसी। मीकाइल ने बहुत दोस्ताना अंदाज में तारुफ की रस्म निभाई थी। वो दिल की उलझन दबाकर ज़ुनैरा से हाथ मिलाने लगी। बाकी सबके कोर्स में किए गए सलाम का उसने सर के इशारे से जवाब दिया। और सानिया से तो अब आप लोग वाकिफ़ ही हैं। वो बहुत शगुफ्तगी का मुजाहरा कर रहा था। और कोई नहीं आ रहा? थोड़ी देर के बाद जब वो लोग बातों में मसरूफ़ हुए तो सानिया ने बहुत सरसरी अंदाज में ज़ुनैरा से पूछा। वो मुस्कुराते हुए लापरवाही से बोली, और किसको आना है? बस फ्रेंड्स की पार्टी है ये। मीकाइल की गलत बयानी पर वो सुलग कर रह गई। बेइख्तियार नज़रें उसकी तरफ उठी तो वो ज़ुकार के साथ बात करता उसी को देख रहा था। वो लब बीच कर नज़रें फेर गई। इफ्तार के बाद पुरलुत्फ़ और पुरतकल्लुफ़ से डिनर का एहतमाम भी था। वो बज़ाहिर इनकी बातों पर मुस्कुराती ज़ुनैरा से महवे गुफ्तगू थी, मगर मीकाइल के धोखाधही का गुस्सा कम नहीं हो रहा था। उसका ध्यान रखिएगा, लड़कियां बहुत ऑटोग्राफ लेती हैं इससे। आसिम इससे कह रहा था। वो नागवारी दबाते हुए लापरवाही से बोली, मुझे क्या ज़रूरत है ध्यान रखने की? इस काम के लिए बड़े अब्बा मौजूद है। इतने पिछले दिनों इतनी झाड़ पड़ी है इसकी तो तौबा। वो अब मीकाइल का मजाक उड़ा रहे थे। फिर भी भाभी, इतनी आज़ादी भी अच्छी नहीं होती। ये तो हाथ से निकल जाएगा। ज़का हंस रहा था। उसने करंट खाकर उसकी तरफ देखा। शायद गलती से वो यूं मुखातिब कर गया। बकवास नहीं करो। क्यों मेरी रेपुटेशन ख़राब कर रहे हो? मीकाइल ने फहमाइशी अंदाज में कहा तो वो बोला, भाई ये इतनी बेखबर है, इतनी इतला तो इन्हें मिलनी ही चाहिए तुम्हारे मुतल्लिक। क्यों भाभी? अब की बार सानिया को मुखातिब करके पूछा गया। गलती का कोई इम्कान नहीं था। अगर कोई और भाभी कहता तो वो यही समझती कि ज़ुनैरा से कहा जा रहा है। वो ज़का के नाते से उसकी भाभी ही लगती थी, मगर ज़का भाभी कह रहा था तो 100% उसको कह रहा था। उसने सनसनाते जहन के साथ उनके चेहरे को देखा। गलती किसको लग रही है? उसने मीकाइल की तरफ देखा तो वो उसे नज़रअंदाज किए आबिद और आसिम के साथ महवे गुफ्तगू था। यू आर वेरी लकी मीकाइल, वाकई सानिया इतनी ही अच्छी है जितना कि तुमने कहा था। रुखसत होते हुए ज़ुनैरा ने कहा। वो बेदक्कत मुस्कुरा पाई और मीकाइल यूँ तारीफ़ें वसूल कर रहा था जैसे उसका हक बनता हो। ओके भाभी, इंशाल्लाह जल्दी फिर मुलाकात होगी, शरारती सा ज़का कह रहा था। वो शर्म के मारे ज़मीन में गड़ने लगी। साथ ही तो मीकाइल खड़ा था। वो तो इनकी गलतफहमी भी दूर करने के काबिल नहीं थी। जाने मीकाइल ने उन सब से कैसे मुतारिफ़ करा रखा था। इसको गाड़ी में बैठने तक उसकी बर्दाश्त जवाब दे गई। ये क्या बेहूदगी थी मीकाइल? वो फट पड़ी थी। ऐसा क्या हो गया? वो गाड़ी स्टार्ट करते हुए बहुत इत्मीनान से पूछ रहा था। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं क्या कह रही हूँ। वो मुश्तइल हो उठी। हद होती है ये ढिठाई की। दोस्तों में तो ये सब चलता है यार। वो पुरसुकून था। सानिया का दिल चाहा कोई शय उठाकर उसके सर में दे मारे। धोखेबाज हो तुम, शर्म नहीं आई? रमज़ान के महीने में झूठ बोलते हुए तुम तो कह रहे थे किसी दोस्त के घर में इफ्तार पार्टी है, वहाँ उनकी माँ बहनें होगी। ज़ुनैरा भी तो किसी की बहन है, हमारी भाभी भी। और ये इफ्तार पार्टी तो
थी ही, उसमें झूठ क्या? वो बड़ी मासूमियत से पूछ रहा था। और तुमने किस कदर बेहुदा अंदाज में मेरा तारुफ करा रखा है उनसे। उसका चेहरा तब उठा। वो गाड़ी की रफ्तार कम करता हुआ इत्मीनान से बोला, इन सब की मंगेतर इतनी खूबसूरत है, मैं ख्वामखा कॉम्प्लेक्स का शिकार हो रहा था। मैंने भी कह दिया, मेरी भी मंगेतर बफजल आला मौजूद है और इनकी मंगेतरों से ज़्यादा खूबसूरत है भी। मगर उस बकवास में तुम्हें मेरा नाम लेने की क्या ज़रूरत थी? वो बुरी तरह बिगड़ी थी। तो क्या हुआ? वो अब भी मुस्कुरा रहा था। इस रोज़ तुम भी तो मुझे बहाने से कॉलेज ले गई थी अपनी फ्रेंड्स में शो बनाने के लिए। मैंने भी समझो यही किया। बहुत ज़लील हो तुम। मारे बेबसी के वो रुहासी हो गई। कितनी फजूल हरकत की थी उसने। कम ऑन यार। वैसे भी कुछ दिनों तक मैं अम्मी से तुम्हारी और अपनी बात करने वाला हूँ। फिर चांद रात तक वो बड़े इत्मीनान से कुछ कहने लगा था कि वो गुस्से से उसकी बात काट गई। बकवास मत करो। तुम जैसे धोखेबाज इंसान को तो मैं 2 मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकती। कच्चा सारी उम्र ऐसा सोचना भी मत। और माज भाई, उनसे मुताल्लिक तुम्हारी क्या ख्याल है? इसका लहजा अब की बार बहुत संजीदा था। यूँ तो शायद वो मारे हया के उसकी बात का कोई जवाब ना देती, मगर जिस तकाबिल में वो बात कर रहा था, सानिया के बोले बगैर बचत का कोई रास्ता नहीं समझ में आया। वो तुम्हारी तरह गैर संजीदा नहीं और ना ही ऐसी फजूल हरकतें करते हैं। वो बहुत सख्त के साथ बोली थी। मैं तुमसे कहूँ कि वो ऐसे नहीं है जैसे दिखाई देते हैं तो वो बेहद संजीदा था। सानिया ने मुतासिफाना नज़रों से उसे देखा और शर्म दिलाने वाले अंदाज में बोली, ये ख्यालात है तुम्हारे इस शख्स के मुतल्लिक जो तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता है, तुम्हारे हर उल्टे सीधे मामले में सपोर्ट करता है, बिज़नेस की तमाम जिम्मेदारी अकेले संभाल रहा है। सानिया को वाकई उसकी सोच के छोटेपन ने दुख पहुँचाया था। क्या तुमने कभी सोचा नहीं कि वो हर उल्टे सीधे मामले में मुझे सपोर्ट क्यों करते आए हैं? वो उल्टा उससे पूछ रहा था। क्योंकि वो तुमसे मोहब्बत करते हैं। बड़े अब्बा को तुम पर सख्ती करते नहीं देख सकते। काफ़ी अरसे तक मैं भी सब अच्छा ही सोचता था सानिया मुजाहिद, मगर फिर मुझ पर आश्कार हुआ कि वो मुझे मेरे हर मन के काम में मुझे सिर्फ़ इसलिए सपोर्ट करते हैं क्योंकि उन्हें अपने बिज़नेस से बहुत दिलचस्पी है और इस सपोर्ट करने में मेरी नहीं बल्कि बिज़नेस की मोहब्बत का अमल दखल है। और अब्बू को मुझ पर सख्ती करते इसलिए नहीं देख सकते कि मैं डांट डपट से मुतासिर होकर बिज़नेस में दिलचस्पी शुरू ना कर दूँ। और इस्तेज़ाइया अंदाज में कह रहा था। सानिया साकित सी उसे देख रही थी। और तुम उनकी मोहब्बत से मुतासिर हो जिन्होंने हमेशा मुझे सौतेला ही समझा है? मोहब्बत तो मैं उनसे करता हूँ, तभी शिकायत का हर्फ ज़बान पर लाए बगैर वही करता हूँ जो वो चाहते हैं। वो चाहते थे कि मैं बिज़नेस की तरफ ना आऊँ, तो मैंने अपने शौक़ को अपना प्रोफेशन बना लिया। अगर वो नहीं चाहेंगे कि मैं कभी भी इस बिज़नेस पर अपना हक़ नहीं जताऊँगा। इन सब बातों का मतलब तुम्हें इनसे मुतनफ़्फ़र करना नहीं बल्कि अपनी पोजीशन साफ़ करना है और ये बताना कि ये ज़रूरी नहीं होता कि हर किसी का हासिल होना दिए जाए। बाज़ औक़ात पीतल पर भी सोने का पानी चढ़ा लिया जाता है। वो अभी बहुत पुरसुकून अंदाज में कह रहा था, जैसे उन सब बातों से उसे कोई फ़र्क ना पड़ता हो। मगर सानिया के अंदर की दुनिया तो ज़हरोज़ बर हो गई। किस कदर जहर भरा था इसके दिल में माज़ के ख़िलाफ़। इसकी तवज्जो उसकी मोहब्बत को सौतेलापन से तकबीर करता रहा। तुम्हें शायद बहुत गिरा गुज़रा है हकीकत जानकर, मगर मुझे अब तकलीफ़ नहीं होती क्योंकि मैं पिछले 4 साल इस हकीकत के साथ सफ़र कर रहा हूँ। मगर मुतमईन हूँ कि मैं इनके रास्ते से हटकर अपनी बेगर्ज़ मोहब्बत का सबूत दे दिया है। मैं ना भी चाहूँ तो उनसे मोहब्बत पर ख़ुद को मजबूर पाता हूँ कि माए ना सही मगर बाप तो हम दोनों का एक ही है ना। वो बोला तो सानिया जैसे फटी तो पड़ी। किस कदर घटिया सोच है तुम्हारी मिकाइल। अपने ही भाई के लिए तुम्हारे दिल में इस कदर जहर भरा है। मैं सोच भी नहीं सकती थी। तुम्हारे खातिर वो हर वक्त बड़े अब्बा से नाराज़गी मोल लेने को तैयार रहते हैं और तुम इनको इस कदर गिरा हुआ समझते हो कि वो सिर्फ़ तुम्हें बिज़नेस से दूर रखने के खातिर दूसरे कामों में सपोर्ट करते हैं। उन्हें मोहब्बत तुम्हें तो शायद उस लफ्ज़ के हिज्जे भी नहीं करनी आती। मोहब्बत करनी है तो उनसे सीखो जो बचपन से लेकर आज तक तुम्हारी रहनुमाई करते आए मगर कभी भी जताया नहीं।
तुम उनसे एक बार कह कर तो देखो, वो सारा बिजनेस तुम्हें सौंप देंगे। अपनी नालायकी और खुदसरी को झूठ के पर्दे में मत छुपाओ। वो इसके घर के सामने गाड़ी रोक के बेयकीनी से उसे देख रहा था। बहुत अफसोस हुआ मुझे तुम्हारी सोच पर मिकाइल। आइंदा कभी मुझसे बात मत करना। मुझे दुख है कि आज से मैंने एक बहुत अच्छा दोस्त खो दिया। बहुत तल्खी से कहते हुए भी उसकी आंखें भर आई थी। वो मुंह फेर कर दरवाज़ा खोलती गाड़ी से नीचे उतर गई। मिकाइल ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की थी। गेट खुलने तक वो गाड़ी वहाँ से निकाल ले गया। वो शदीद दुख और तख़य्युर में मुब्तला थी। उसे कभी भी एहसास नहीं हुआ था कि मिकाइल के दिल में मांस के लिए इस कदर अनाथ भरा है। इसके अंदाज व एतबार से उसे मांस के लिए लापरवाही झलकती थी, तो इसके लिए लावालिपन या छोटे होने का लाड ताबीर करती थी। मगर अब अंदाज़ा हुआ था कि वो तो अंदर तक जहर से भरा हुआ है। अगर ये सब मांस भाई को पता चल जाए तो वो सोचकर ही लरज़ गई। इतनी मोहब्बत तो बड़े अब्बा भी शायद मिकाइल से नहीं करते जितनी कि मांस भाई करते हैं। वो तो शदीद सदमे का शिकार हो जाएंगे। अभी परसों ही तो वो इधर आए थे। कितनी परेशानी से वो मिकाइल का जिक्र कर रहे थे। सारा दिन कमरे में बंद पड़ा रहता है। मैं तो सख्त परेशान हूँ इसकी तरफ से। यूनिवर्सिटी भी नहीं जा रहा। फाइनल एग्ज़ाम्स सर पर है। मैंने कहा भी कि अगर पढ़ना नहीं है तो ऑफिस ज्वाइन करो। आखिर मैं वाकई कब तक तन्हा ये सब संभालूंगा। मगर वो तो काम के नाम से भागता है। अबू सही कहते हैं, उसे अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। ये सब मुझे अकेले का ही तो नहीं है, वो भी बराबर का हिस्सेदार है। किस कदर मोहब्बत थी उसके लहजे में मिकाइल के लिए। वो उनसे मुताल्लिक़ क्या कुछ कहता फिर रहा था। सानिया के दिल में मिकाइल के लिए शदीद बदगुमानियाँ भर गई। ऐसी मोहब्बत करने वाले शख्स से नफ़रत करने वाला की मोहब्बत का हकदार नहीं हो सकता। वो बहुत बोझल अंदाज में गुजर रहे थे। जहन को और फजूल सोचों से बचाने के लिए वो खुद को पढ़ाई और इबादत में मशगूल की हुई थी। बड़ी अम्मा ने उन्हें इफ्तार पार्टी के लिए बुलाया तो उसे ना चाहते हुए भी जाना पड़ा। तुम तो यहाँ का रास्ता ही भूल गई हो, माज भाई ने मुस्कुराते हुए कहा तो उसका दिल दुख से भरने लगा। वो कुछ बोलने बगैर मुस्कुरा कर रह गई। उनके आमद का सुनकर मिकाइल भी अपने कमरे से निकल आया था। आते ही सलाम करता अम्मी के शाने पर सर रख कर बैठ गया। वो हमेशा की तरह इसके मोहब्बत अंदाज पर जी जान से वारी जा रही थी। अली ने बड़े शौक़ से उसके सोलो एल्बम के बारे में पूछा, जिस पर वो रमज़ान शुरू होने से पहले काम कर रहा था, तो वो मुस्कुराकर बोलने लगा, अब तो ये सब छोड़ने का फ़ैसला कर लिया है मैंने। वो सब उस इंकशाफ पर चौंके थे। अब्बू जी की नाराज़गी भी नहीं अच्छी लगती, इसलिए सब छोड़कर ये कि और हमारा मज़हब भी इसकी इजाज़त नहीं देता। यही गैर मुस्तकिल मिजाजी तो इसे ले बैठी थी। अच्छा एक तरफ लगा हुआ था, अब इसमें कीड़े निकालने की क्या ज़रूरत थी। बड़ी अम्मी इसकी तरफ से वाकई बहुत परेशान हुई। इसीलिए तो कहते हैं इंसान को हर काम हर फैसला सोच कर करना चाहिए था। जो इतने सालों से इस प्रोफेशन के लिए की है तो इसे तो ठिकाने लगाने दो। इतना नाम हो गया है इस प्रोफेशन में तुम्हारा, इस्टेब्लिश हो जाओगे तो पैसा भी बहुत होगा। एक कॉन्सर्ट से ही एक अच्छा आर्टिस्ट पता नहीं कितना कमा लेता है। मास भाई की संजीदगी ने सानिया को मिकाइल पर और गुस्सा दिला दिया। कितना सही कह रहे थे वो। उन्होंने ही तो उसके इस प्रोफेशन में आने की हिमायत की थी। बड़े अब्बा के हर एतराज़ और नाराज़गी का सामना किया था, और अब जबकि इसके कुछ बन जाने और बड़े अब्बा के सामने सरखुरू हो जाने के दिन आए तो वो उन्हें शर्मिंदा करने पर टूला हुआ था। मुझे यूँ कमाने की क्या ज़रूरत है भाई। मुझे एहसास हो गया है कि मैं गलती पर था। मैं मज़ीद अब्बू जी की नाराज़गी नहीं सह सकता, इसलिए मैंने सोचा है कि अब मैं आपके साथ बिज़नेस में हाथ बटाऊँगा। वो बहुत इत्मीनान से बोला तो सानिया भी इख्तियार उसे देखने लगी। तो उस रोज़ बकवास कर रहा था कि भाई की मोहब्बत ने बिज़नेस को ठोकर मार दी। लहजे के इत्मीनान के बरक्स वो सानिया को बहुत मुस्तरिब लगा। हल्की बड़ी हुई शेर के साथ उसकी आंखों से झलकती अजीब सी कैफियत उसके इस्तराब की गवाही दे रही थी। वो उसके बचपन का साथी था, कैसे उसके अंदाज ना पहचानती। बिज़नेस कौन सा कहीं भागा जा रहा है, मगर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि तुम्हें इस प्रोफेशन को हरगिज़ नहीं छोड़ना चाहिए। माज भाई ने उसे फिर से समझाने की कोशिश की तो अम्मी ने उनसे कहा, बात तो मिकाइल ने भी बहुत अच्छी
सोची है। वाकई हमारा मज़हब भी गाने बजाने की शदीद मुखालिफत करता है। वजह उसकी कमाई से गुजारा औकात करना, और फिर जब हलाल और मेहनत की रोज़ी कमाने का एक ज़रिया पास मौजूद है तो फिर क्यों खामखा जलते कोयले को हाथ में लेने की कोशिश की जाए। माज भाई ने फिर कोई बात नहीं की। उनकी खामोशी ने सानिया को दुख में मुब्तला कर दिया। बेचारे माज भाई, उन्होंने मिकाइल को इस प्रोफेशन में इस्टेब्लिश करने के लिए कितनी तगुदो की थी, और वो यूँ हर चीज़ से कर हो रहा था। माना कि मज़हब गाने बजाने की इजाज़त नहीं देता, मगर यही मुसलमानियत पहले जाग उठती तो माज भाई को अपनी मोहब्बत के इकारत जाने का गम तो ना होता। इफ्तार के बाद मिकाइल ने यही बात बड़े अब्बा को बताई तो वो बेपनाह खुश उठे। सानिया ने उन्हें पहली बार मिकाइल का शाना थपक कर यूँ गले लगाते हुए देखा था। वो इस वक्त मिकाइल की आंखों में उतरने वाली खफीफ सी सुर्खी भी उससे मख्फी नहीं रही थी, मगर उस वक्त माज भाई जैसे मुखलिस बंदे के लेट डाउन होने के ख्याल से दुखी हो रही थी, इसलिए ज़्यादा गौर नहीं कर पाई थी कि वो किस कदर जज्बाती क्यों हो रही है। तो क्या इसे पहले इस बात का पता नहीं था? सानिया ने बहुत तीखे अंदाज में कहा तो वो संजीदगी से बोला, बात पता होने या ना होने की नहीं, अमल करने की होती है। और अब क्या कुरान मजीद में लिखे हर हुर्फ हर हुक्म को हम मान जाते हैं? हम नहीं जानते। बात सिर्फ ये है कि हम अमल कितना करते हैं और इन अहकामात पर, और फिर कि खुदा जब भी सीधे राह पर डाल दे। तुम्हारा क्या ख्याल है? कोई काफिर ये सोचकर मुसलमान ही ना हो कि पहले तो आधी उम्र काफिर में गुजार दी, बाकी भी सही। खुदा के यहाँ तो चोटी बराबर नेकी भी काउंट होती है, बल्कि नेकी करने का सिर्फ इरादा बांधना तक नेकी है। वो सच अटक कर रह गई। अब वो नेकी इस रोज़ जो बेहूदगी की थी, इस ले जाकर अपने दोस्तों में बिठा दिया था, वो तो जैसे खुदा के यहाँ काउंट ही नहीं होना। बड़ी अम्मी चाय बनाने के लिए उठने लगी तो वो उन्हें मना करती खुद उठकर किचन में आ गई। माज भाई तो खाने के बाद किसी से कुछ बात किए बगैर उठकर अपने कमरे में चले गए। सानिया का ख्याल था कि अभी वो न सिर्फ उन्हें कमरे में चाय देने जाएगी, बल्कि उन्हें समझाएगी कि अब वो मिकाइल को खुद से फैसला करने और उसका नफ़ा या नुकसान सहने की आदत पड़ने दे, वरना वो तो यूं ही उन्हें हर किसी के सामने शर्मिंदा करता रहेगा। मगर बड़े अब्बा तो बहुत खुश है। उन्होंने तो मिकाइल के गैर मुस्तकिल मिजाजी पर गुस्सा नहीं किया, और वो उलझी थी फिर खुद ही मुतमईन भी हो गई। अच्छा है, माज भाई को भी अब शर्मिंदगी नहीं होगी कि जिसकी वो इतनी हिमायत करते रहे वो यूँ आधे रास्ते पर पलट आया है। खुदा करे अब मिकाइल इनके आधी जिम्मेदारी बांट ले। इतना बड़ा बिजनेस बेचारे तन्हा संभाल रहे हैं। वो बहुत मगन सी मग में चाय उंडेल रही थी जब वो एकदम से बोला, अभी तक नाराज़ हो? उसकी अचानक बोलने पर दिल सिकुड़ कर फैला, मगर वो कुछ बोले बगैर दूसरे मग में चाय उंडेलने लगी। मैं जानता हूँ कि मेरे मुतालिक तुम्हारे दिल में बहुत सी गलतफहमियाँ पैदा हो चुकी हैं, मगर सानिया, तुम ना तो अच्छी चेहरा सुनाइश हो और ना ही मोहब्बतों के खालिसपन को समझती हो। मैं पागल नहीं हूँ जो तुम्हारे सामने अपने ही भाई के मुतालिक बकवास करता फिरूँ, मगर वो सच था जो मैंने सिर्फ तुम्हें बताया, इसलिए कि मैंने हमेशा तुम्हें अपने दिल में बहुत ख़ास जगह दी, और दूसरे की तरह मैं तुम्हें भी माज भाई के ज़ाहिरी शख्सियत का शिकार नहीं होने देना चाहता था। तुम बहुत गलत बंदे को आइडियलाइज़ कर रही थी, और मैं नहीं चाहता था कि तुम और तुम्हारा चाहत कभी खुद से हटकर भी कुछ सोच लिया करो। मिकाइल हैदर, उसने तल्खी से कहा, आज से सोचना शुरू कर दिया है। एक ऐसी मोहब्बत के लिए सबकी उम्मीदों के खिलाफ लड़ता आया हूँ जो मेरे लिए कभी अपना दामन कशादा कर ही नहीं सकी। एक माज भाई का खफा करके मैं अपनी माँ, अपने बाप के होठों पर मुस्कुराहट फैला सकता हूँ, तो फिर मुझे वापस पलटने में क्या एतराज़ हो सकता है? वो बिलाकर पुरसुकून था, मगर सानिया चटक कर रह गई। माज भाई क्यों खफा हो गए? तुम्हारे फैसले से। तुम्हारी ही नालायकी ने अब तक तुमसे गलत फैसले करवाए, और वो तो सिर्फ तुम्हें सपोर्ट करने के गुनाहगार है। मैं भी यही समझता था सानिया, मगर फिर एक ऐसी बात हुई जिसने मुझे शॉक्ड कर दिया। तभी मैंने दिल की नहीं, जहन की आंखों से देखना शुरू किया। वो फीकी सी मुस्कुराहट के साथ बोला तो वो सर झटकते ट्रे उठाए बाहर निकल गई। सबको चाय देकर वो माज भाई का मग ले उड़ गई। मिकाइल भी वहाँ मौजूद नहीं था। इसकी चाय भी
यूं ही पड़ी थी। वो मिकाइल की सोच पर मुतासिफ थी। माज भाई के कमरे की तरफ बढ़ी तो अंदर से मिकाइल के बोलने की आवाज़ सुनकर दरवाजे पर ही ठटक गई। ये सब तो आप भी चाहते थे। अच्छा भला इज्जत और शोहरत का रास्ता छोड़कर इस मुश्किल पर निकल आए हो। इसी दिन के लिए मैंने तुम्हारी हिमायत की थी। माज भाई बरहम थे। सानिया को इन पर तरस आया। नफरत और इज्जत और शोहरत का क्या है, वो तो आप भी कमा ही रहे हैं। मिकाइल के इत्मीनान भरी आवाज़ उभरी। अच्छे भले तो एस्टेब्लिश हो गए तो खामखा छोड़ने की क्या ज़रूरत थी। माज भाई की आवाज़ में नागवारी थी। अब 4 साल की मेहनत इकारत हो गई। सानिया ने उन्हें हक पर महसूस किया। बेबरकी कहा माज भाई, मैं बिल्कुल संजीदा हूँ। बहुत लापरवाही दिखा ली, मगर अब मैं मज़ीद अब्बू जी की नाराज़गी अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं अब आपकी हर जिम्मेदारी शेयर करूँगा। पहली बार सानिया को मिकाइल का संजीदा और जिम्मेदार अंदाज़ अच्छा लगा था। उसे तवक्को थी कि माज भाई भी अब तमाम नाराज़गी भूलकर उसे गले से लगा लेंगे, क्योंकि वो हमेशा मिकाइल की लावालिपन और गैर जिम्मेदारी तबीयत के मुतालिक परेशान रहते थे। मगर बहुत गैर मुतवक्का तौर पर उनकी सर्द सी आवाज़ बुरी। मगर मैं तो ऐसी कोई ज़रूरत महसूस नहीं करता। मैं खुद तमाम जिम्मेदारी अच्छी तरह संभाले हुए हूँ। मगर मेरा भी तो कोई फ़र्ज़ बनता है भाई। इतना वसी बिजनेस। मिकाइल कुछ कहने लगा था कि वो उसी सर्द भौरी से उसकी बात काट कर बोली, इतना वसी बिजनेस मैंने इसीलिए सेट नहीं किया कि उसे तुम्हारे तजुर्बों के नज़र कर दूँ। ये सब मेरी मेहनत का नतीजा है। तुमने जो लाइन मुंतखब की है, तुम्हारे लिए वही काफ़ी है। सानिया को लगा उसके सर पर छत आ गिरी है। ये माज भाई बोल रहे थे। सदा के हलीम और भाई की मोहब्बत में डूबे रहने वाले। जब आपने बिजनेस संभाला था तब अब्बू जी ने इस पर बहुत मेहनत की हुई थी। जब आप इनके सेट पर काम कर सकते हो तो मैं आपकी मेहनत को आगे क्यों नहीं बढ़ा सकता। मिकाइल अब भी बहुत आराम से बात कर रहा था, क्योंकि ये सब कुछ मेरा है। अब की बार उन्होंने बहुत वाशिकाफ अंदाज में कहा। सानिया के अंदर कुछ टूटा। माज भाई तो बड़े मिट्टी के बुत साबित हुए थे, जो कहीं से भी मिट्टी उठाकर बनाई जा सकती है। ना उस मिट्टी में मोहब्बत की महक थी, ना जज्बों की शिद्दत। किस कदर ताफुन ज़दा लग रही थी ये मिट्टी। आप भूल रहे हैं कि मैं भी आपके ही बाप से की सगी औलाद हूँ। हम दोनों की रगों में एक जैसा ही लहू दौड़ता है। मिकाइल ने उन्हें जताया। तुमने उन्हें जितने सुख दिए हैं वो सभी जानते हैं, और अब तो वैसे भी तुम्हें ख्वामखा की हलचल मचाने की ज़रूरत नहीं है। चंद दिनों तक मैं अब्बू से तमाम कारोबार के पावर ऑफ अटॉर्नी लेने वाला हूँ, क्योंकि तुम्हारी तरफ से वो मुकम्मल तौर पर मायूस हो चुके हैं। तुम बेफिक्र रहो। मैं तुम्हें माहाना का खर्चा दे रहा हूँ, मगर इस बिज़नेस की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना। माज भाई की तमाम तर्ज कमीनगी सामने आ गई थी। कदर तवक्कुफ़ के बाद बहुत ताज्जुब से बोला, ये सब तो मैं बहुत पहले ही जान गया था भाई, और ये मेरी मोहब्बत थी कि मैं आपको एहसास दिलाए बगैर पीछे हट गया, क्योंकि मेरे लिए आपकी अहमियत थी, बिज़नेस की नहीं। आप मुझे बिज़नेस से दूर रखने की खातिर हर उस काम में ज़ाहिर और दर पर्दा मुझे सपोर्ट करने लगे, जो मुझे अब्बू की नज़रों में गैर जिम्मेदार और खुद सर और नाफरमान साबित करते। मैंने इस पर भी एतराज़ नहीं किया, अलबत्ता अपना अलग से करियर बनाने की कोशिश ज़रूर करने लगा कि आप भी खुश रहे और अब्बू को भी किसी के सामने निदामत ना हो। हालात बिल्कुल ठीक जा रहे थे। मैं आपकी राह में कभी भी रुकावट नहीं बना। इतने वसी और इस बिज़नेस का पार्टनर होने के बावजूद मैंने कभी अपने हक़ के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि ये आपको पसंद नहीं था। मगर आपने मेरी मोहब्बत का क्या सिला दिया, मेरी मोहब्बत का भी ख्याल नहीं किया। आप बहुत झूठे हो गए थे इस वक्त मेरी नज़रों में। जब आपने शादी के लिए सानिया का नाम लिया, क्या आप सानिया से मुतालिक मेरी फीलिंग्स से वाकिफ़ नहीं थे? इस घर में सिर्फ आप ही थे जो ये जानते थे कि वो मेरे लिए क्या है। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं आपके हर बढ़ते कदम के नतीजे में आगाह हूँ, और आपको दुख तो होगा, मगर मैं बहुत अफसोस से कहना चाहूँगा कि इससे आगे बढ़ने की इजाज़त मैं भी आपको नहीं दे सकता। मैं इस बिज़नेस को ठोकर मार देता अगर आपकी नज़रों में मेरे लिए मोहब्बत होती, मगर सानिया को भी अपनी ज़िंदगी से निकाल देता अगर आप
आपको उससे मोहब्बत होती। हाँ, मैं जानता हूँ आप सिर्फ मुझसे हर चीज़ छीनना चाहते हैं, मगर अब मैं आपको कुछ भी नहीं दूँगा। मेरी हर शय पर सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरा हक़ है, चाहे वो बिज़नेस हो या सानिया। उसने बहुत सुकून के साथ अपनी बात मुकम्मल की थी। मास भाई बिल्कुल खामोश थे, शायद खुद कुछ एहतसाबी के कटहरे में खड़े थे या फिर बेहिस बन चुके थे, मगर सानिया तो बेदर पे इंकशाफों से बमुश्किल वहाँ से हटी थी। उससे ज़्यादा और क्या सुनना, उसे उस कदर रोना आ रहा था कि हद नहीं। किस कदर गलत निकले थे मास भाई अपने रोशन चेहरे के पीछे तारीकी का तो उसने तसव्वुर भी नहीं किया था। और मिकाइल वाकई कितना सच्चा था वो। मैं उसे किस कदर घटिया समझती रही, उसके लफ्ज़ों का भी एतबार नहीं किया। सही कह रहा था, मुझे शनाशाई बिल्कुल नहीं आती, और ज़रूरी तो नहीं कि हर चेहरा शनाशी ही आती हो, मगर जब कोई आपको कुछ बताए तो उसके सही या गलत होने के जांच तो करनी ही चाहिए। अगर अब भी इत्तेफाकन वो ये सब ना सुन लेती तो वो लरस कर रह गई। मिकाइल का तो सामना करने का ताब भी नहीं रही थी। सो अम्मी के जल्दी उठने का कहने लगी। बड़ी अम्मी के रोकने के बावजूद उसने अपने सर में दर्द के बहाने को बरकरार रखा तो अम्मी उठते ही बनी। पर इस कदर मुर्दनी छाई हुई थी कि कोई खुशी मनाने को जी नहीं चाह रहा था। 29वें रोज़े की शब अब्बू भी आए तो उनसे लपट कर रो रही थी। बेटा जी, अब तो आ गया हूँ, अब किस बात का रोना। वो हंस रहे थे। अम्मी को सरजनिश पर वो खजल से हो गई, मगर दिल इस कदर भारी हो रहा था कि हद नहीं। सबको यकीन था कि उस बार 29 का चांद होगा। अली मुसलसल उससे ज़िद लगाए हुए बैठा था कि छत पर चल कर चांद देखा जाए। मेरी नज़रें इतनी अच्छी नहीं हैं, और यूँ भी हलाल कमेटी बैठी है ना ये खुशखबरी सुनाने के लिए। वो सख्त बेजार थी। आपा ने मुझसे बात की थी माज और सानिया के रिश्ते की। भाई आपका भतीजा है, शक्ल व सूरत आदत भी लाखों में एक है। मैं तो खुद इस रिश्ते पर जी जान से राज़ी हूँ, मगर अली उसका हाथ थामकर सीढ़ियों की तरफ घसीट रहा था जब उसके कानों से अम्मी की आवाज़ टकराई। उसके दिल को जैसे किसी ने मुट्ठी में भींच लिया। मेरे खुदा, इतनी सी भूल और इतनी बड़ी सज़ा। नहीं। उसकी आंखें जल थल हो गई। अली दरमियानी दीवार फलांग कर अपने दोस्त की छत पर उतर गया। वो टेरेस की सीढ़ियों पर आ बैठी। जाने कितनी देर गुजर गई वो अपने बेवकी और बदनसीबी पर नुहाकुना थी। अब उसे एहसास हो रहा था मिकाइल की बेमानी सी दिखाई देने वाली तवज्जो किस कदर मानी खेज थी। सामने की तरफ उठने वाली निगाहों की चमक के सभी रंग कितने दिलफरेब थे, मगर वो समझ ही ना पाई। मोहब्बत को सामने पाकर भी ना पहचाना। उससे बड़ी बदनसीबी और कोई होगी, और इस हकीकत का इस पर सानिया को बहुत शिद्दत से एहसास हो रहा था। गली में यकलख्त शोर सा मच गया। उसके बाद गोले और पटाखे जलने लगे। अली भी भागता हुआ आया। अब भी चांद हो गया है, कल ईद है। वो पुरजोश सा नीचे चला गया, मगर सानिया वहीं बैठी रही। कल ईद है, उसने बेआवाज़ दोहराया था। ईद खुशी का दिन था, और तो फिर ये दिल क्यों उदास है। उसने खुशी की रमक तक नहीं है। थक कर उसने घुटनों में सर दे लिया था। उसे पहली बार एहसास हो रहा था कि मिकाइल उसके लिए क्या अहमियत रखता था, और वो नहीं था तो दिल से ज़िंदा रहने की ख्वाहिशें भी ख़त्म हो चुकी थी। 29 के चांद की तो उसे हमेशा ख्वाहिश रहती थी। मज़ा तो 30 रोज़े के बाद की ईद का भी था, मगर 29 के ईद तो सरप्राइजिंग होती थी। चांद रात मुबारक हो। उसके बहुत करीब से आवाज़ उभरी थी। सानिया ने करंट खाकर सर ऊपर किया। वो संजीदा सा उसके साथ बैठा था। उसके आंसू भरी आंखों को देखकर लहजा भर उसने लब भींचे, फिर फीकी सी मुस्कुराहट के साथ बोला, आई एम सॉरी सानिया, मुझे तुम्हारे साथ इतनी फजूल बातें करने का कोई हक़ नहीं था। ये ठीक है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत ख़ास फीलिंग्स हैं, मगर मैं खुद को तुम पर मुसल्लत नहीं करना चाहता। तुम अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला खुद से करने में बिल्कुल आज़ाद हो। नीचे सब लोग तुम्हारे मुंतज़िर हैं। मास भाई तुम्हारे लिए प्रपोज़ल ले आए हैं। वो कमाल ज़ब्त का मुज़ाहरा कर रहा था, मगर वो सब भभक कर रो दी। शायद ये खुशी के आंसू हैं। मैं भी दुआ करूँगा कि तुम बहुत खुश रहो, वो कह रहा था। उसके दिल का
दर्द बढ़ने लगा। उसे चाहने का दावा करने वाला कितनी आसानी से उसे किसी और के हवाले कर रहा था। तुम बहुत अक्लमंद हो जो तुमने दिल की बात कह दी, वरना आज पछता रही होती। भला मास भाई के आगे मेरी हैसियत ही क्या। वो इसके फैसले को सराह रहा था, मगर उसकी ज़ब्त की हद बस यहीं तक थी। शर्म तो नहीं आई तुम्हें कितनी आसानी से मुझे एक करप्ट इंसान को सौंपते हुए। वैसे तो तुम बहुत दावे करते हो मोहब्बत के, और जब सबके सामने स्टैंड लेने का वक्त आया तो भाग रहे हो। वो बिना सोचे समझे फट पड़ी। करप्ट कौन? वो हैरत का शिकार हुआ। मैं सब सुन चुकी हूँ तुम्हारी और मास भाई की गुफ्तगू। वो गुस्से से बोली। मिकाइल ने उच्चकती निगाहों से उसके चेहरे पर डाली। तमतमाता चेहरा और सियाह आँखों में शिद्दत गिरिया से उतरने वाला गुलाबीपन उसकी दिलकशी को बढ़ा रहा था। जर्सी के सूट में मलबूस शॉल ओढ़े वो स्वेटर से बेनियाज थी। इतनी सख्त सर्दी में बेहतियाती बरत रही थी। तो क्या हुआ? मोहब्बत करने वाले तो महबूब की बुराई और खामियों को भी कबूल कर लेते हैं। और वो संजीदगी से कह रहा था। सानिया ने सख्त नागवारी से उसे देखा। महबूब नहीं, सिर्फ आइडल, वो भी तुम्हारे हवाले से। वो उस पर सच्चाई आश्कार कर रही थी। फिर रोंदे हुए लहजे में बोली, वो गलतफहमी तो किसी को भी हो सकती है। यानी तुम अब इस रिश्ते से इनकार कर रही हो? वो हैरान था। हाँ। इसने आंखें रगड़ डाली। मगर क्यों? मैं किसी धोखेबाज शख्स के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। इसकी आंखें फिर से भर आई। तुम मुझे धोखेबाज समझती हो? उसके हवास पर चौंके हुए थे। वो ये क्या कह रहा था? मैं मास भाई को कह रही हूँ। वो खफा हुई थी। मगर वो तो मेरा प्रपोजल लाए हैं। उसने धमाका कर दिया। सानिया को लगा उसकी पूरी सित्ती डोल हो गई है। बेयकीनी से उसका मुस्कुराता चेहरा देखने लगी। मोहब्बत के आगे सबको घुटने टेकने पड़ते हैं। मास भाई को आईना दिखाने वाला कोई नहीं था। मैंने गलती की जो उनके पहले ही वार पर पीछे हट गया। अगर पहले ही उनको रोक देता तो आज वो मेरे सामने नादिम ना होते। बहरहाल अब बहुत कुछ बदल चुका है और मैं अपने बिगाड़े हुए काम को अपनी ही अकल से सुधार कर बहुत मुतमईन हूँ। अब बताओ, कर रही हो मुझसे शादी? और वो बहुत फराख दिली से सारी गलती अपने सर लेते हुए आखिर में शरारत से पूछा। कह रहे थे जैसे वो अपना प्रपोजल लाए हो। सानिया ने यकलक शानों को मनोवजन से हल्का होता महसूस किया। उन आंखों में उतरती जगमगाहट भी तो देखनी थी। उन खूबसूरत होठों पर दिलकशी सी मुस्कुराहट भी तो देखनी थी। वो जैसे गुनगुनाया था। उसकी पलकें बोझल होने लगी। झूठ मत बोलो, तुम्हारे मोबाइल का फ़ोन बुक में मैंने कितनी ही लड़कियों के नंबर्स उनके नामों से फिट हुए देखे हैं। वो कुछ घबराई और कुछ खफासी हुई तो वो उसका हाथ थामे हुए बेइख्तियार हंस पड़ा। फिर बहुत संजीदगी मगर चाहत भरे लहजे में बोला, वो सब तो छोड़ दिया सानिया तुम्हारी चाहत में, और फिर तुम्हारे सामने किसी का चेहरा कहाँ चल सकता है? वो सहर फराज लहजे में कह रहा था। अब तो लिखने बैठता हूँ तो तुम्हारी तारीफ में दीवान लिखना चाहता हूँ। मेरे हम नफ्स, मेरे हम सफ़र। सुन ए बेखबर, तेरी एक नज़र करे वो असर मेरे चारा। मैं तो रह जाऊँ दिल को थाम कर, मेरे चारा कर तुझे क्या खबर। ये जो तेरी आँख का नूर है, ये करे सितारों को भी मान। आज कह रहे हैं यही चाँद मेरे पहलू में ईद का चाँद है। चाहतों का भरा मखमूर सा लहजा सानिया को अपनी रगों में दौड़ता महसूस होने लगा। तुम भी कहो ना, मिकाइल ने इसरार किया। मेरी तरफ से यही समझ लो ना। वो सुर्ख चेहरे से मनमनाई तो वो कहका लगा कर रह गया। चलो उठो, चची जान बता रही थी तुम्हें कि तुम मेरे गम में अभी तक शॉपिंग भी नहीं की। वो छेड़ रहा था। इसके हाथों में हाथ दिए वो मुस्कुराती हुई उठकर खड़ी हुई। मगर अब होश से करूँगी और अभी तुम्हारी पॉकेट मनी से। उससे धमकाया तो वो शरारत से पूछने लगा, फिर मेरे दोस्तों को तुम्हें भाभी कहने की इजाज़त तो है ना? वो पहले तो इसके अल्फाज पर तपी थी, फिर अपना हाथ छुड़ाकर हंसती हुई इजाज़त है कहती सीढ़ियाँ उतरने लगी। तो बहुत दिनों के बाद खुद को गहरी तमानियत के फ़िज़ा में पाकर वो भी इसके साथ चांद रात की खुशियों में शरीक होने चल दिया।
جی تو ناول یہاں ختم ہوتی ہے. آپ کو بتاؤ آپ کو ناول آپ لوگ بتائیے کہ آپ کو ناول کیسی لگی، کمنٹ سیکشن میں ضرور کمنٹ کیا کرو. اچھا مجھے نا یہ جو ماس کا کریکٹر ہے نا، بیچ میں مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ کچھ تو گیم کھیل رہا ہے، کہ میں سمجھ گئی تھی یہ کچھ تو گیم کھیل رہا ہے. ویسے ناول بہت اچھی تھی، بہت پیاری تھی. اپنی رائے ضرور دے. اب ملتے ہیں دوبارہ پھر ایک نئی ناول کے ساتھ.